Lastly, and the brahmastra of this video, how to approach the exam paper. कैसे तुम CLAT को approach करोगे? At the end of the day, अगर result नहीं आया ना, तो no one will give a fuck about it. So basically, this video will cover your last 10-day strategy plus how to attempt the question paper and how to strategize that D-Day, because that is one thing which will matter at the end of the day. So hello you guys and welcome back to Vanshika's Vibe, and I am here with yet another video. Since तुम लोगों को last वाली video काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, and I really felt कि a lot of you guys have been like helped by the video. Like I felt कि तुम लोगों को काफी ज्यादा help हुई है उस video से. So I thought why not to make another one, क्योंकि ऐसे ही मतलब see, I can literally feel what you guys might be going through at this phase of time, because it's difficult, right? It's very difficult. मतलब when I used to be in that phase, so I used to literally cry. तो 10 दिन बचेंगे ना, तो मैं तो भाई बहुत ही रो रो के ऐसे पागल वागल हो गई होंगी. मैं तो बहुत ऐसे पैनिक करती थी. आई कैन लिटरली गेट कि तुम लोग भी काफी ज्यादा से डर रहे होगे, बट डोंट वरी, हियर आई एम योर सेवियर. भगवान ने भेजा है मुझे. सो आई विल बी टेलिंग यू कि what this video is going to be. So we will be bifurcating it into like 4-5 parts. So yeah, let's get into the video. And we will be covering it into 4 parts. And the very first part is going to be how to mentally prepare yourself in the next 10 days, which is like literally so important. I personally feel कि CLAT is an exam जिसमें तुम्हें mentally अपने आप को prepare करना is like really important. And secondly, we are going to cover and that what to study and how to study. The second sub part is like majorly important, because what to study is still okay, but how to study, how to not waste time, and how to analyze or how to utilize your time in the best possible way, क्योंकि इस time पे you cannot afford wasting time. So yeah. Thirdly, we are going to cover that what to do one night before your exam, because that is also one major part. Lastly, and the brahmastra of this video, how to approach the exam paper. कैसे तुम CLAT को approach करोगे? How will you be able to manage it in those 2 hours? So that is the most important part. So wait for it and let's get into the video. Okay, so सबसे पहले मॉक पे ध्यान दो. ये मत करो कि मॉक नहीं देंगे, अब नहीं, मॉक देना है, मॉक जरूर दो. मॉक अलग अलग इंस्टीट्यूट के दो और मॉक एनालाइज करो. मैं हजार भी बार बोल रही हूँ ये बात, बट मॉक को लाइटली मत लो. गिव मॉक और एनालाइज इट प्रॉपरली. और मॉक देना कैसे, एनालाइज कैसे करना है, इसकी डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो वो देख लेना. एंड वन मोर थिंग आई वुड से कि एंजाइटी कंट्रोल करो, बिकॉज एट दिस पॉइंट इवन आई यूज टू फील कि मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है ऐसे. I couldn't study क्योंकि मुझे एंजाइटी हो रही है. Don't just do that. Try to figure out ways जिससे तुम अपनी एंजाइटी को कंट्रोल कर लो. Hear some music, talk to your favorite person, go for a walk, or talk to your parents, talk to one of your friend जो CLAT नहीं कर रहा हो. Mark my words, talk to one of your friend जो CLAT नहीं कर रहा हो और जो तुम्हारा सच में दोस्त हो. Go to them, they will literally give you the best possible advice. My roommate used to be that for me. Like yeah, she used to give me really good advice. Try to talk to someone who's not doing CLAT so that they can motivate you. क्योंकि देखो, if someone is doing CLAT, there's no problem. वो भी तुम्हारे दोस्त ही हैं. But the thing is कि CLAT में तुम दो लोगों का जो चीजें हैं वो सेम नहीं होती. So what might work for him may not be applied to you. So that is like really important. So try to talk to someone apart from the person who is doing CLAT. Thirdly, please take care of your sleep schedule. Don't ruin it कि भाई हमने साल भर तो पढ़ा नहीं, अब हम 20 घंटे पढ़ेंगे, नींद पूरी नहीं लेंगे. No, don't do this. CLAT is literally, I'm not going to say literally in this video क्योंकि तुम लोगों ने मुझे बहुत बुली किया लास्ट वीडियो में. Okay, so CLAT is not at all about like CLAT is not at all like other exams. It is literally about a lot of patience, calmness, motivation, and consistency, I would say. So make sure to be calm. Don't panic. Don't panic. And sleep schedule plays a vital role in this. क्योंकि calmness कैसे आती है, तो तुम्हारे दिमाग को proper amount of rest मिलेगा, so it will work more efficiently. I don't know, मतलब sleep schedule का तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ कि मैं खुद एक घंटे पढ़ के एग्जाम दे, एक घंटे सो के 10 घंटे पढ़ के एग्जाम दे रही हूँ. बट दिस इज कॉलेज के एग्जाम. CLAT इज लाइक लिटरली सो डिफरेंट. दिस इज स्कूल, कॉलेज में ये सब काम कर जाता है, बट CLAT इज लाइक something which requires patience, calmness, and all that. So for that, do that. Okay, so now we'll talk about fix your mindset. So basically, during CLAT, biggest battle is not your books. It's literally your mindset.
अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाते हो तो यू कैन डू अ लॉट बेटर इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो ऐसे ही देने चला गया। सी, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। दो लोग हैं, दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ पढ़ाई की है। देखो 1-1.5 लाख लोग देते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई ही नहीं पढ़ता होगा। 5-6 हजार लोग तो बहुत ही अच्छा पढ़ते होंगे, बट उसमें से भी कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। ये नहीं सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। वी नीड टू गेट दिस थिंग इन इंडिया। ऐसा कुछ है नहीं इंडिया में तो बस ये 24 घंटे पढ़ते रहो, बस ये हो जाता है वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सी, दो लोग हैं, दो सेम अमाउंट ऑफ पढ़ाई करके जा रहे हैं, बट माइंडसेट विल डिफर। एक इंसान रात को मस्त आराम से पूरी नींद करके सोया है, उसने अपने दिमाग को प्रॉपर रेस्ट दिया है, सब कुछ किया है। और एक भाई वो एग्जाम के 1 घंटे पहले रटे जा रहे हैं। दोनों का जो ब्रेन लेवल होगा, एफिशिएंसी होगी जो दोनों की, मैं बहुत ही टेक्निकल बातें कर रही हूँ बट आई विल जस्ट क्विकली रैप इट अप। तो दोनों की जो एफिशिएंसी होगी उसमें बहुत डिफरेंस होगा। जो कामनेस से गया है वो, उसका ब्रेन बहुत टाइम से रेस्ट कर रहा है, तो उसका ब्रेन इज, अगर तुम उसकी ब्रेन से बोलोगे कि 2 घंटे मेहनत करनी है, वो जल्दी कर लेगा। तुम अपने ब्रेन को इतना थका के जा रहे हो तो तुम्हारा ब्रेन उधर पे 100% एफिशिएंसी से कैसे काम करेगा? यू नीड टू गेट दिस थिंग कि वो 2 घंटे विल मैटर द मोस्ट। तुम उसके पहले क्या कर रहे हो, तुमने पूरे साल क्या किया, एट द एंड ऑफ द डे अगर रिजल्ट नहीं आया ना तो नो वन विल गिव अ फक अबाउट यू। दैट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, दैट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, ठीक है? तो स्लीप शेड्यूल सुधारो, ऐसा मत करो कि तुम 4-4 घंटे सो रहे हो। प्लीज सिर्फ 10 घंटे 10 दिन बचे, जस्ट ट्राई टू एटलीस्ट स्लीप 8 आवर्स, 7 to 8 आवर्स से कम मत सो, रोज इतने घंटे सो। इट इज नॉट एट ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज लिटरली इन योर इन्वेस्टमेंट विच विल गिव योर इवेंचुअल रिजल्ट ऑन द डी डे। सो डोंट वरी कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई और पढ़ रहा होगा। दैट्स ओके, ठीक है यार, कुछ नहीं होता है इतना। मोर इम्पोर्टेंट कि तुम प्रोडक्टिवली पढ़ो इंस्टेड ऑफ तुम ज्यादा टाइम पढ़ो। इवन दो आई यूज्ड टू स्टडी फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, बट आई एट द एंड ऑफ द डे आई मेड श्योर, like at the last like 1 month or something, I literally focused a lot on my mental strategy instead of just reading material, solving mocks, analyzing. ये सब तो करना ही है, this is to the everything, but there is something alongside which you have to manage. The other thing I would like to tell you कि अब कुछ नया मत करो, don't learn new things। कि वही मैं बोल रही हूँ कि तुम क्लैट वाले लोगों से थोड़ा दूर रहो तुम, ठीक है? मतलब क्योंकि सी, कोई कुछ नया पढ़ के आया, वो तुम्हें बताएगा, तुम्हें लगेगा अरे इसने पढ़ लिया, मैंने नहीं पढ़ा। अब तुम वो पढ़ लो, चाहे वो टॉपिक इंपॉर्टेंट ही ना हो, और तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तुम कुछ और कर लेते पर तुमने वो टाइम कहीं और वेस्ट कर दिया। तो डोंट लर्न एनीथिंग न्यू। इतना है जो है सब हो जाएगा, इतने में से ही आएगा, इतना कुछ नहीं आता है। चिल रहो, इतना एक्स्ट्रा मत पढ़ो। फिर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। मॉक जो है वो कोई जजमेंट नहीं है, मॉक इज लिटरली अ फीडबैक। आई नो ये बोलना बहुत आसान है, एंड आई यूज्ड टू लिटरली क्राई ओवर माय मॉक स्कोर्स। जब लास्ट के कुछ दिनों में अगर मेरी 70-80 मतलब कुछ ऐसे लोग, क्योंकि एट दी देन ये नहीं बताती, तुम लोग डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि मेरे लास्ट के कुछ मॉक्स में लाइक आई स्कोर इवन 105 और 100+, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। फिर एक मौका आता था जिसमें मेरे 80 आ जाते थे, तो मैं बहुत दुखी हो जाती थी कि भाई क्लैट के उससे पहले मेरे 80 आ रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी टफ। बट it doesn't matter. It literally doesn't matter. The only reason you are giving mocks right now, the only reason you have given mocks throughout the year is to learn from that, is to get feedback from that. Not, it's not at all a judgment. The only judgment will be on 7th of December. तो ठीक है। तो मॉक को जजमेंट की तरह मत लो, मॉक के स्कोर से दुखी मत हो। आ बैड मॉक डज नॉट मीन कि तुम्हारा क्लैट नहीं होगा। इट लिटरली डज नॉट मीन दिस। प्लीज प्लीज, मैंने लिटरली 200 मॉक दिए होंगे, मैंने 2 साल प्रिपरेशन की थी, आई वाज अ ड्रॉप इन। तो मैंने लिटरली 200 मॉक दिए होंगे। सो मॉक मॉक की चीजों में यू कैन लिटरली ट्रस्ट ऑन मी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है मॉक से। सो आई वुड रिकमेंड यू कि मॉक्स इज लिटरली नॉट अ जजमेंट, जस्ट उससे सीखो, वो सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए है, सिर्फ सीखो। Also, I would like to mention about the fact कि focus on consistency instead of intensity। कि मतलब ऐसा मत करो कि तुमने आज 15 घंटे पढ़ लिया, कल तुम 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन तुम 20 घंटे सो गए, उसके बाद अगले दिन तुमने 2 घंटे पढ़ा। डोंट डू दिस। हर दिन 10 घंटे पढ़ो। 10 घंटे इज द आइडियल टाइम। अब बोलूंगी मैं कि हाँ 10 दिन बचे हैं, 10-10 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो, बाकी टाइम में अपन जो करना है करो, ठीक है? तो हाँ, इतना पढ़ो, इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लो। हर दिन अच्छा अमाउंट ऑफ स्टडीइंग आवर्स निकालो, इंस्टेड ऑफ कि आज मैंने 20 घंटे पढ़ लिए, कल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। ये नहीं करना है। कंसिस्टेंसी, आज जितना पढ़ रहे हो उतना कल पढ़ो, मेंटेन दैट। एंड प्लीज रिमेंबर, क्लैट ओनली रिवॉर्ड्स काम पीपल। मैंने तुम्हें इतनी बार बता दिया है कि काम रहो, पेशेंस रखो अपने आप में। क्लैट इज लिटरली
something which is dependent on those factors, and I have realized it over time. So that's why I'm telling you कि तुम लोगों से वो गलती ना हो जो मैंने की है. Yeah. Okay, this might offend a lot of you guys, but don't consume a lot of content. At this point अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम कर दो. मेरा तो आई वुड नॉट लाई, अब तुम्हें जो इतना दिखता है कि मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ, यूट्यूब पे पोस्ट कर रही हूँ, ड्यूरिंग क्लास my screen time would literally used to be 1 hour or even less than that. कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं सिर्फ घर पे बात करने के लिए फोन उठा रही हूँ. Well, can you imagine? Like I literally cutted off myself from people. So उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें भी वही करना है. Just literally depends from people to people कि कौन किसके लिए क्या वर्क कर रहा है. But at this point जब 10 दिन बचे हैं, so I would uh, advise you to like literally decrease your screen time. कि 1-2 घंटे से ज्यादा मत करो. हाँ, लैपटॉप से तो तुम कर रहे हो, दैट्स ओके, बट फोन ऐसे इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ऑल्सो कंज्यूमिंग कंटेंट. आई ऑल्सो मीन कि तुम ये मत करो कि एट दिस पॉइंट कि तुम 100 वीडियोस देख रही होंगी कि अब कैसे प्रिपरेशन करें, 15 डे स्ट्रेटेजी, दिस एंड दैट, जैसे कि मैं बना रही हूँ, ऐसे 100 लोग और बना लेंगे. सो लिमिट योरसेल्फ टू वन रिसोर्सेज. सपोज यू आर वाचिंग माय वीडियो, so don't go to another video. Like please try to understand the psychology behind this. कि क्लैट का कोई क्या बोलते हैं स्केड्यूल नहीं होता कि सबको ये करना है. इट लिटरली डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो व्हाट मतलब जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगी, मे बी समवन विल टेल यू अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी. मैंने तुम्हें कुछ बताया, किसी और ने तुम्हें कुछ बताया, किसी और ने तुम्हें कुछ बताया, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज हो गया, तुम तीनों में से कुछ नहीं कर पाए, तुमने इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, तुम्हारा एफिशिएंसी क्या आया? जीरो. डोंट डू दैट. आई एम नॉट सेइंग कि मेरा कॉन्टेंट देखो भाई, मत देखो, मैं तो इतना क्लास का बनाती भी नहीं. जस्ट फोकस ऑन समवन यू ट्रस्ट. अगर तुम्हारा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनका वो जो बता रहे हैं उतना 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 कर लो, मेरा मत देखो, दैट्स ओके. बट जस्ट मैं तुम्हारे भले के लिए बता रही हूँ कि लिमिट योरसेल्फ. ऐसा मत करो कि 15 डेज स्ट्रेटेजी, भाई मैंने इसकी भी देख ली, इसकी भी देख ली, इसकी भी देख ली, अब तो वो 45 डेज की स्ट्रेटेजी हो गई, अब बताओ क्या करोगे, कितनी फॉलो करोगे? एक ही देखो, समवन यू कैन ट्रस्ट. दैट इज लिटरली योर चॉइस, बट लिमिट योरसेल्फ. ऐसा मत करो कि सब देख रहे हो, बिकॉज तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा. इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू. A lot of people also ask me in my DMs कि दीदी how to schedule my day. एक मिनट. जैसे कि मैंने इसको पहले ही आंसर कर दिया है कि क्लास का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता. मेरा कभी कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था. हर हफ्ते मेरा शेड्यूल बदलता था, क्योंकि हर हफ्ते तुम्हारे स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट्स बदलते. आज तुम्हारा इंग्लिश अच्छा गया है, कल के मौके में भी तुम्हारा इंग्लिश बुरा जाए, लीगल अच्छा जाए. अगले मौके में तुम्हारा मे बी लॉजिकल बुरा जाए, लीगल अच्छा जाए. तो तुम्हारा इंग्लिश बुरा गया तो अगले दिन तुम्हें किस पे काम करना है? इंग्लिश पे. इंग्लिश सुधर गया, अब किस पे काम करना है? जिस पे और कम हो गया. यू गेटिंग इट? तो वर्क ऑन समथिंग जिस पे वर्क करने की जरूरत है. तुम समझ रहे हो? ये नहीं कर रहे कि अरे मेरा तो लीगल स्ट्रॉन्ग है, मैं तो दिन भर लीगल ही करूंगा, लीगली मैं 35 में से 35 ले आऊंगा, बाकी सब भाग में जाए. कुछ नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा. तो फोकस ऑन सब्जेक्ट जो उस टाइम पे वीक जा रहे हैं. मेक श्योर टू डू दैट. तो इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता. सपोज आज तुमने मॉक दिया, उससे मॉक में से तुम्हें ये 4-5 गलतियां पता चली, अगले दिन तुम्हें क्या करना है? उन गलतियों पे काम करना है. बस वो गलतियां सुधर गई, अगले दिन फिर से मॉक दे दो. दैट इज हाउ यू शुड बी डूइंग इट. लाइक आई वुड रिकमेंड यू टू डू दैट. कि हाँ, अपनी गलती पे काम करो. ऐसे मत सोचो कि भाई फिक्स शेड्यूल है, आज तो इतने घंटे ना करनी. हाँ, फिक्स शेड्यूल क्या होना चाहिए? एक बार तुम हिंदी न्यूज पेपर पढ़ रहे हो, थोड़ी बहुत रीडिंग कर रहे हो, करंट अफेयर्स डेली रिवाइज करने हैं. अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट हैं जो रोज हमारे तुम्हारे वीक हो जाते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट रोज रिवाइज कर लो. बट कोई फिक्स शेड्यूल मत बनाओ कि भाई ये करना ही है. कीप ऑन स्विचिंग इट एज पर योर प्रिपरेशन इज गोइंग. जैसे भी तुम्हारी जा रही है उसके हिसाब से कीप ऑन चेंजिंग. So now we are going to talk about what to do a night before exam. So. Okay. तो मैंने तो आई थिंक पढ़ा ही नहीं था एक दिन पहले. मैंने तो सिर्फ रीडिंग की थी, करंट अफेयर्स रिवाइज किए थे एंड ऑल दैट. क्योंकि आई एम लिटरली समवन जो मेंटल चीजों पे बहुत ध्यान देता है. मुझे ये लगता है ऐसे जैसे हम, आई गिव यू माई एग्जाम्पल कि अभी हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो मैं रात भर पढ़ती हूँ, दैट इज ओके, ठीक है. बट मैं एग्जाम के 2-3 घंटे पहले सो जाती हूँ. मैं एग्जाम के बाहर सब लोग ऐसे 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 पढ़ रहे होते हैं, मैं एग्जाम के बाहर मस्त बैठ के गाने सुन रही हूँ, चिल कर रही हूँ, पेड़ों को देख रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अपने ब्रेन को थकाना नहीं चाहती. मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्रेन एग्जाम के टाइम अच्छे से काम करे. You getting my point? This might sound weird or dumb to some people, but that is what has always been worked for me. So that is how I work. So
अब देखो, एग्जाम वो भी देगा जो बिल्कुल एक एक मिनट पहले तक पढ़ के जा रहा है, और एग्जाम तुम भी दोगे तो एकदम चिल होके जा रहे हो। वो भी पूरा एग्जाम लिख के आ गया तो नहीं कि बीच में छोड़ के भगाएगा, तुम भी पूरा एग्जाम लिख के आओगे, बट जो ब्रेन का एफिशिएंसी लेवल होगा, एक का ब्रेन पूरा थका हुआ जा रहा है, वो रात भर से पढ़ रहा है, वो उसने नींद नहीं ली, वो एग्जाम के एक मिनट पहले तक पढ़ रहा है, और फिर वो पेपर देने जा रहा है। मैं मेरे बहुत से दोस्तों के साथ हुआ है कि वो सो जाते हैं पेपर में, उनका पेपर में मन नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तुमने अपने ब्रेन को ऑलरेडी इतना कंज्यूम, उसको इतना तड़पा दिया है कि वो अब बोलता है कि भाई अब तू मुझे रेस्ट दे, रेस्ट दे। तो अगर तुम अपने ब्रेन को ऑलरेडी थोड़ा सा रेस्ट दोगे, तो जब जरूरत होगी तो तब वो काम करेगा। सो आई वुड रिकमेंड यू कि एक दिन पहले एकदम ज्यादा मत पढ़ो, जस्ट रिवाइज करंट अफेयर्स, डू अच्छे से रीडिंग करना, रीडिंग अच्छे से करना, 1-2 घंटे मिला के आई से रीडिंग अच्छे से करना कि रीडिंग का दिमाग में से ना चलेगा। एक बार वोकेबुलरी रिवाइज कर लेना, करंट अफेयर्स रिवाइज कर ही रहोगे तुम, जस्ट डू दीज बेसिक थिंग्स। ऐसा नहीं कि तुम एक मॉक दे रहे हो, भाई 6 तारीख को मॉक मत दे दो, मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगी, मैं तुम्हें मॉक मत देना 6 तारीख को। ये मत करना तुम, ठीक है? मॉक 5 को देना, 5 को मॉक देना, अच्छे से उसको एनालाइज करना। 6 तारीख को अपनी सारी गलतियां, तुमने अपनी गलतियां लिखी होंगी, देयर माइट बी अ कॉपी जिसमें तुमने अपने साल भर की लिखी होंगी, मैं अज्यूमिंग कुछ तो लिखा होगा कि भाई इस मॉक में ये गलती हुई थी, तो उसको रिवाइज करना कि ये गलती क्लास में नहीं करनी है। दैट इज ऑल यू हैव टू डू ऑन 6। और रात को 6-7 बजे के बाद तो पढ़ना बंद ही कर देना, जस्ट स्लीप। भाई मैं लिटरली 12-13 घंटे सो के गई थी, बिलीव मी एवरीथिंग इज वर्थ इट। ब्रेन को रेस्ट दो, ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा। क्लैट रट्टा मारने वाला एग्जाम है ही नहीं, जस्ट तुम्हें उस टाइम पे 2 घंटे एफिशिएंटली तुम्हारे अपने दिमाग को काम करवाना है, दैट इज इट। फिर उसके बाद 6-7 बजे सो जाना, सो जा मत जाना, 6-7 बजे पढ़ाई बंद कर लेना, अपना फेवरेट फूड खा लेना, कुछ ऐसे खुश हो जाना, अच्छा खाना खा के जो सबको खुशी मिलती है, कुछ अच्छा ऐसे खाना खा लेना। रात को अपना पूरा बैग पैक कर लेना, ऐसे एडमिट कार्ड एक बार फाइनली चेक कर लेना कि तुम्हारा सेंटर क्या है, गलत जगह मत पहुंच जाना। भाई ये बहुत लोग करते हैं कि भाई उस दिन गलत जगह पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद तमाशा होता है, फिर वो इधर उधर होंगे, ये मत करना, ये लास्ट मिनट गलतियां मत करना। मैं तो बहुत ही ज्यादा, मैं तो भाई 2 घंटे पहले सेंटर पहुंच गई थी, वहां बैठी रहूंगी मैं, लेकिन मैं अगर थोड़ा लेट हुई ना तो मेरे दिमाग पे प्रेशर आ जाएगा। अपने ब्रेन को तुम्हें इतना पैम्पर करना है ना उसके एक दिन पहले की, भाई तू बस वो 2 घंटे चल जाना, बाकी सब तो ठीक। आई यूज्ड टू डू दैट। तो हाँ, यही करना बस, थोड़ा सा ऐसे रात को सब पैक पैक करके सो जाना, 9-10 घंटे सो लेना, मस्त 8-9 बजे उठना, अच्छे से खाना खा के जाना, भूखे मत जाना, क्योंकि क्लास 2 से 4 होता है, 4 बजे तक मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मुझसे क्या होता है, मैं टेंशन में खा नहीं पाती, मैं खाना नहीं खा पाती, तो मैं तो ना खा के नहीं गई थी, आई जस्ट हैड चॉकलेट्स। मुझे क्लास के बीच में भूख लग रही थी यार, व्हाट द हेल। बट ऑब्वियसली उस टाइम पे ये सब नहीं सोचता है, बट मेक श्योर कि कुछ ना कुछ तुम खा के जाओ, पर ऐसा भी नहीं कि भाई तुम बिल्कुल आलू के पराठे खा के जा रहे हो उधर सो जाओ, ऐसा मत करना। जस्ट ईट समथिंग गुड, लाइट वेटेड, पोहा खा लिया, वो जैसे लाइट वेट है जो तुम्हारा पेट भी भर दे। चॉकलेट जरूर खा के जाना, चॉकलेट खा के जाना, डार्क चॉकलेट खा के जाना, विल हेल्प। बट हाँ, कुछ खा के जाना, कुछ लाइट वेटेड खा के जाना। आई वुड ऑल्सो रिकमेंड यू कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डोंट डिस्कस योर स्कोर्स विथ योर फ्रेंड्स, लाइक डोंट। उनके अगर 2 मार्क्स भी ज्यादा आ जाएंगे, वो तुम्हारे दोस्त हैं, नो वरीज, कोई बात नहीं, बट तुम्हें लगेगा वो एट द एंड ऑफ द डे वो भी क्लैट ही दे रहे हैं ना, वो तुम्हारी कॉम्पिटिशन भी है। सो आई एम नॉट सेइंग कि दोस्ती में ये सब आ जाता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारे दिमाग को लगेगा कि यार इसके तो आ रहे हैं, इसके तुमसे सपोज तुम्हारे 80 मार्क्स है, किसी की 88 आ गए, तो 8 मार्क्स तुम्हारी तो फट के 74 हो जाएगी भाई, कि 8 मार्क्स ज्यादा आ गए भाई। डोंट डिस्कस, बताओ मत अपने नंबर, मत बताओ, उससे मत पूछो, किससे पूछो ही मत कि तुम्हारे कितने नंबर है, ठीक है? मॉक हो गया, तुमने दे दिया, मैंने दे दिया, ठीक है, एनालाइज करो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मॉक का सिर्फ इतना रेलिवेंट है कि मॉक देखे उसको एनालाइज करो और उसकी गलतियां देखो, nothing else, nothing else. The last and the most important part of this video, how to attempt the question paper. Just give me 1 second. I have an exam tomorrow. I had one exam today, which I literally fucked up. So हमारे 3 एग्जाम हो गए हैं, जिसमें से 2 मेरे काफी अच्छे गए हैं, बट आज वाला थोड़ा सा ऐसे खराब हो गया क्योंकि मुझे केस के नाम याद नहीं थे। मतलब आई देखो, 150 बहुत सारे केस करने हैं, तो भाई जैसे कल हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का एग्जाम है, सो वी हैव लाइक 150 केसेस इन इट। मतलब कैन यू इमेजिन? बट ऐसा नहीं कि तुम्हें सारे ही रखने हैं, सम इम्पोर्टेंट होते हैं जो तुम्हें पढ़ने होते हैं। तो इट्स लाइक कि तुम केस का नाम भूल जाते हो एग्जाम में जाके, और तुम्हें केस का नाम भूल जाते हो, तुम्हें फैक्ट फैक्ट याद रहते हैं, बट केस का नाम इज इम्पोर्टेंट। तुम केस का नाम नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आज हमारे टॉर्च लॉ का एग्जाम था, जिसमें मैं केस के नाम भूल गई, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं एक दिन पहले पढ़ रही थी यार। मैं तो कॉलेज में आके आके इतनी चिल हो गई थी ना कि भाई अब तो पढ़ना वढ़ना नहीं है, अब तो भाई क्लैट ही दिया है। क्लैट में तो मैंने इतना पढ़ा है, तो मुझसे पढ़ाई होती नहीं भाई।
मतलब बट स्टिल मैं कल लिटरली रात भर 1 घंटे सोई थी, फिर मैं आज एग्ज़ाम देके आई, फिर मुझे शाम को ये वीडियो बनानी थी बट मैं 1 घंटे सोई थी, तो मैं बिल्कुल एग्ज़ाम से आके एकदम सो गई। तो फिर मैं उठी, फिर उसके बाद मैंने खाना-वाना खाया, फिर मैंने सोचा कि वीडियो तो बनानी है इवन दो आई हैव एग्ज़ाम कल भी, बट मैं पढ़ लूँगी, डोंट वरी अबाउट मी। कल वैसे कल नहीं है, हमारा वी हैव छुट्टी कल की, देन वी हैव इट परसों, बट स्टिल मैं थोड़ी ऐसी बेशरम हूँ कि मैं कल दिन भर सोती रहूँगी, फिर रात भर पढ़ूँगी, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच आई शुड नॉट बी डूइंग, क्योंकि ये तो मैंने क्लास में नहीं किया। यू कैन ट्रस्ट ऑन मी ऑन दैट कि क्लास के लिए मैं कुछ भी गलत नहीं बता दूँ भाई। आई लिटरली आई एम टेलिंग यू विथ ऑल माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जेन्युइनली तुम्हारी हेल्प करनी चाहती हूँ। मैं लिटरली कितनी खुश हो रही थी कि 50 लोग मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। भाई आई एम जेन्युइनली हेल्पिंग 50 पीपल, ओह माय गॉड, दैट हैज़ बीन अ ड्रीम फॉर मी और मैं आज कर रही हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। तो या दैट इज़ इट। मैं बीच में अपनी-अपनी बातें बोलने लगती हूँ, बट लेट्स गेट इनटू द वीडियो कि हम पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखो, तुम्हारा एक शेड्यूल होगा कि सपोज यू, मेरा जहां तक मुझे याद आ रहा है, मेरा था लीगल, लॉजिकल, सीए, इंग्लिश एंड मैथ्स। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने ये फॉलो किया था क्लास में। तो लीगल मैंने सबसे पहले इसलिए रखा था क्योंकि मेरा लीगल सबसे स्ट्रॉन्ग था। बट क्लैट, देखो, लीगल को तुम्हें 35 मिनट्स देने, इतना ही था, इतना ही होता है ना शायद, हाँ 35 टू 40 मिनट्स वॉट एवर इट इज। तो जस्ट डोंट डू दिस कि लीगल को तुमने 45 मिनट देंगे, 45 मिनट देंगे, लीगल को तुम्हें 35 देंगे, डोंट एक्सीड द टाइम लिमिट। क्योंकि देखो, 5 सेक्शन विल नॉट होल्ड द सेम डिफिकल्टी लेवल। कोई एक सेक्शन होगा जो बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होगा, कोई एक सेक्शन होगा जो एक्सट्रीमली लड्डू होगा, मतलब एकदम केक वॉक होगा। तो तुम्हें उस टाइम पे ये चीज वो करना मैं बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने पता है क्या किया था, जस्ट तुम्हें पेपर जब मिले ना, तो एक बार जस्ट लुक एट थ्रू आउट द पेपर, डायरेक्ट ऐसा मत खोलो कि तुमने अपना सेक्शन खोल लिया। जस्ट एक बार सारा पेपर देख लो क्या आ रहा है भाई। पेपर में इंग्लिश तुम्हें ऊपर ऊपर से समझ आएगा, अच्छा इसमें तो कुछ ऐसे हाई लेवल टर्म्स यूज हुई है, ये थोड़ा ऐसा है, ये वैसा है, थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आएगा। सपोज तुम्हें कहीं पे राइट टू इक्वालिटी लिख गया, पर राइट टू इक्वालिटी तुमने पढ़ा है तो तुम्हारे दिमाग में वो आएगा कि हाँ भाई ये तो पढ़ा है, ये हो जाएगा। तो एक बार नजर मार लो तो तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा पता चल जाए कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो वो उसके दिमाग को उस चीज के लिए प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फर्स्टली ये कर लिया। सेकेंडली क्या करना है, सपोज इफ यू आर अटेम्प्टिंग लीगल सबसे पहले, सो 35 मिनट्स इज द टाइम लिमिट। 36 37 हो जाए उससे ज्यादा एक्सीड मत करना, डोंट डू दिस। ये बिल्कुल पागल मत हो जाना कि भाई मेरी तो लीगल सबसे स्ट्रॉन्ग है, अब तो इसमें कुछ भी आ जाए, एकदम ईगो पे मत ले जाना कि ईगो में कुछ भी आ जाए मैं तो करूंगा। नहीं होता भाई, अगर टफ है तो वो नहीं होगा तुमसे, क्योंकि अगर तुम, उन्होंने लीगल टफ बनाया है ना, तो इंग्लिश उन्होंने बहुत ईजी, मतलब एग्जाम गिविंग एन एग्जांपल, अगर लीगल टफ बनाया तो एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो एकदम ही लड्डू होगा, तुम्हें बस वो आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि टफ क्या है, टफ आया है वो सबके लिए टफ आया है, इट्स नॉट ओनली फॉर यू। और जो इजी है वो भी सबके लिए इजी है, डिफिकल्टी लेवल इज सेम फॉर एवरीवन। तो जिसमें अगर सब टाइम वेस्ट कर देंगे, सपोज लीगल में अगर तुम उसमें टाइम वेस्ट ना करके जो जिस बहुत इजी सब्जेक्ट है उसमें पूरे नंबर ले आओगे, तो तुम ऑलरेडी बहुत से लोगों से आगे हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन समथिंग जो तुमसे नहीं हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रही कि अरे टफ आया तो तुम सॉल्व ही मत करो, पैसे तुम्हें दो उसको, जितना टाइम हो रहा है उसको एक पैसे छूट के कोई बात नहीं। ये मत करो कि मैं 35 से 45 मिनट ले जाती हूँ लेकिन मैं ये पैसेज करूंगी, अगर टाइम बचेगा तो हम वापस आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। बट 35 मिनट के एक्सीड मत करो, 2-3 मिनट इज ओके। 2-3 मिनट अगर तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, एक क्वेश्चन बच रहा है, तो ठीक है उसको कर लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा मत करो कि 35 मिनट हो गए, पूरा एक पैसेज बचा है और तुम्हें लग रहा है कि तुमने 35 मिनट में अगर इतने पैसेज करवाए तो एक पैसेज तुम 10 मिनट के पहले कर लोगे, नहीं कर पाओगे। पूरा पेपर का टाइम जो है कम्ड अप हो जाएगा। डोंट डू दैट। तो पहले सब्जेक्ट में तो बिल्कुल मत करना, और ये तुम्हारी बुरी किस्मत होती है कि जो तो क्वेश्चन जो पहले तुम सब्जेक्ट कर रहे हो वही टफ आ जाए, तो दैट इज योर बैड लक। बट उसको तुम्हें गुड लक में कन्वर्ट करना है। जस्ट ट्राई टू, उसको जितना टाइम है, हर सब्जेक्ट को जितना टाइम है उतना दो। जो इजी आया होगा वो अपने आप तुमसे जल्दी हो जाएगा, तो उसका टाइम दो, जो टफ आया उसको दे देना। वेरी इजी इट इज। तो हाँ, एक्सीड मत करना और इजी टफ पर देखना, जो इजी आया, और घबराना मत बिल्कुल। अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाए, जो मुझे लग रहा है आ सकता है, तो बिल्कुल मत घबराना, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इट इज फॉर एवरीवन। अगर डिफिकल्टी लेवल जा रही है ऊपर तो कट ऑफ अपने आप कम हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और अगर इजी आए तो भी एकदम पागल मत हो जाना कि क्लैट 2024 जो मेरा नहीं निकला था वो इजी आया था, मैं एकदम पागल हो गई थी भाई कि भाई ये तो मेरे से हो जाएगा, ये तो मेरे से हो जाएगा। मैं पेपर देख के आई, मुझे लग रहा था भाई ये ईयर 1 तो मेरी ही आ रही है, मेरा निकला तक नहीं। ठीक है, तो जस्ट ऐसे पागल मत हो जाया करो कि पेपर देख के कि भाई बहुत इजी है, ऐसा नहीं होता है। पेपर इजी है, इट इज फॉर एवरीवन। अगर तुम्हारा हो रहा है तो सबका भी हो जाएगा। तो इजी डिफिकल्ट डज नॉट मैटर, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कट ऑफ। तुम्हें बस सब लोगों से आगे रहना है, और ये सब उधर मत सोचना, उधर सिर्फ इतना सोचना कि 2 घंटे हैं,
यही पेपर है, यही सब कुछ है। जस्ट गिव योर फकिंग बेस्ट। जो आ रहा है, जो करना है सब करो, बेस्ट कर दो अपना। उसके बाद क्या हो, क्या रिजल्ट, क्या, डज नॉट मैटर। डोंट थिंक अ लॉट अबाउट इट। think I have covered a lot of things, easy, tough, everything is done. So that is it for the video. And I really want to help you guys a bit more, क्योंकि मैंने वैसे थ्रू आउट द ईयर कुछ किया नहीं है तुम लोगों के लिए, बट आई वांट कि मैं 10 दिन में अगर तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ तो कर लूंगी। इसीलिए जो भी तुम्हें कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, क्या कपड़े पहनने हैं, ये मुझसे कोई पूछ रहा था ऑन इंस्टाग्राम की व्हाट इज द ड्रेस कोड और समथिंग। तो वॉट एवर इट्स, देयर इज नो ड्रेस कोड एज सच, ठीक है। सो तुम्हें जो भी कोई डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क आउट इन कमेंट्स। एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी द Q&A वीडियो। सो जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो मैं उसमें आंसर कर दूंगी। So whatever questions, whatever doubts you have regarding that, please feel free to comment। अगले 2-3 दिन में कर देना, बिकॉज उसके बाद मैं वीडियो बना लूंगी। होपफुली मेरा एग्जाम खत्म हो जाए जब तक, नहीं तो मैं पागल वागल हो जाऊंगी। अब मुझे पढ़ना है। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। आई होप कि तुम्हें इस वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। एंड कीप डूइंग, कीप अचीविंग, अपना अपना बेस्ट दो, सब अच्छा होगा। बिल्कुल टेंशन मत लो, अपने आप को थोड़ा काम रखो, थोड़े बहुत म्यूजिक सुनते रहो, अपने घर वालों से बात करो, डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, कुछ अच्छा अच्छा खाना खाते रहो। फूड यूज टू मेक मी हैप्पी। सो मैं मौक दे के दुखी हो जाती थी तो मैं खाना खा लेती थी अच्छा, जो भी तुम्हें खुशी देती हो जो भी चीज, डू दैट। जस्ट ऑल द बेस्ट, सब अच्छा होगा, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। जो भी कुछ प्रॉब्लम हो, जस्ट यू कैन, मैं लिटरली सबको रिप्लाई करती हूँ, यूट्यूब, सॉरी, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ईमेल पे। तुम लोग कहीं पे भी मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। ईमेल पे मत करना क्योंकि वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप हो जाता है, उसमें मेरे प्रोफेशनल मैसेजेस आते हैं थोड़े, इवन तो मुझे कोई कोलैब नहीं आता है अभी। तो सब्सक्राइब कर देना इफ दैट वीडियो हेल्प यू थोड़ी बहुत भी। एंड आई सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर।